Whenever students are applying to multiple jobs, one mistake that they do mostly is that कि यार वो एक particular job के लिए जब apply कर रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने resume को tailor made नहीं करते हैं एंड इस वजह से काफ़ी बारी तुम्हारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स होने के बाद, अच्छी इंटर्नशिप्स होने के बाद यू स्टिल गेट रिजेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी. सो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए रिसेंटली आई डिसाइडेड टू वाइब कोड ऐप दैट विल हेल्प यू चेक योर ATS स्कोर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन. एंड मैंने रिसेंटली ये लाइव भी किया था, मैंने इस पर लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे इसके बारे में पोस्ट किया था एंड वी गॉट मोर देन 2000 यूजर्स एंड देवर एक्चुअल यूजर्स. उन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ करी चीज़ें. सो मैंने इसमें थोड़ी सी लिमिट लगा दी थी, थोड़ा सा स्मार्ट काम किया था सो दैट पीपल डोंट मिस यूज़ द API एंड मेरा जो बिल है वो बहुत ज़्यादा ना आ जाए. एंड यही चीज़ आई टीच यू गाइज in this video. We'll go through how I built that, how you can build apps. If you have an idea, there are multiple steps that you have to go through to get to a final production ready idea. अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और बनाई हैं बट कोई भी अभी तक प्रोडक्शन रेडी नहीं हो पाया था. दिस वॉज द फर्स्ट ऐप दैट आई वॉज एबल टू मेक प्रोडक्शन रेडी एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट. दूसरा और ऐप है जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ. आई विल शो यू गाइज अबाउट दैट in some time. But yeah, let's start the video. I'll walk you through which all documents that you need, how to prompt to an LLM to get those documents, how to create a UI, how to get inspiration, and all those things in this video. Hi guys, I'm Nishant Chahal. Welcome back to the channel. Let's start the video. So majorly you need 5 set of documents whenever you are vibe coding. Number 1 is PRD, product requirement document. ठीक है. Second, you need a backend checklist or plan or structure. You can call it whatever. Third is a front-end guideline. Fourth is your cybersecurity guideline. And fifth is your app flow document. But yeah, these are the documents that you need whenever you are vibe coding, whenever you are creating any sort of document. And इन सबको लेने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फ्लो नहीं है. एंड इस सबको करने से पहले व्हाट यू नीड इज यू नीड टू डू रिसर्च. तो we'll start with research. First we'll create the feature list, what all features we need after researching. Then we'll create a PRD, product requirements document. After that we'll create front end guidelines and उसके साथ साथ UI भी बना लेंगे थोड़ा सा, how you can find inspiration. I'll like walk you through a few tools that you can actually use. After that we'll create our app flow document, backend guidelines and our final cybersecurity checklist. We'll give all this to our coding agent and using that coding agent then finally we'll create a plan कि यार क्या क्या चीज़ें कब कब करनी है and उस plan को then we'll start coding. So for research I generally use deep research. So मैं इसको अभी prompt करूँगा. I'll show the prompt. I'll share all the prompts that I'm using in this video. And yeah, I've recently got this monitor. BenQ RD320U is the most premium addition to their programming monitor lineup. And I can tell you, जो मेरा पुराना monitor था उससे ये काफ़ी ज़्यादा better है. And इस पे जो colors हैं, जो resolution है वो काफ़ी अच्छी है. So it has an IPS black display. It has 2000:1 contrast ratio, which gives deeper blacks, more vibrant colors and less strain to your eyes. सर इसका जो display है ना वो nano matte panel है, which is superior to anti-glare display as it gives you specific glare reduction, crucial for users that code throughout the day with varying light conditions. Matte finish की वजह से काफ़ी बढ़िया हो जाता है. Let's focus on our work. Abhi what I'll do is I'll prompt it to check out what all features are required and how can we create a resume reviewer and उसमें क्या specific features हमें चाहिए. We'll start building with one of the features and then we'll see कि और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. I'll give it a persona of a researcher कि यार ये research करने में काफ़ी अच्छा हुआ है, 5-10 years of experience in doing specific company research. I'll ask it to get details around resume reviewing apps and let's see what it gets. So I'll just run deep research on this and send.
Now it is going to ask me a few questions and I'll answer those questions. Then it will like give a better result. So great idea to help you out. ATS score. Are you targeting any specific industry? So I'll answer one by one. I want to build this as a tool. Do you want me to include companies with existing platforms? Yes. Then are you interested in AI NLP technologies used by ATS system or user based? Planning to fine tune an LLM for this. Suggest me a better way if there is any. Then should the research include how major ATS? Yes. And last is, are you planning to monetize this product? If yes, why not? Let's see. Yes. Also see the short comings for these platforms. Use Reddit, X and other social media to see if people are asking for a particular feature. Let's go. Now it is going to take I think 5-10 minutes. We'll give it that and let's wait. So as you can see ये मस्त अपना रिसर्च कर रहा है, काफ़ी सारे सब कुछ स्कैन कर लेगा. एंड यार इस मॉनिटर की एक मस्त बात मेरे को ये लगती है ना, इस पर ग्लेयर नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल आई शो यू, दिस इज़ हाउ इट लुक्स अगर मैं इसके ऊपर फ्लैश लाइट पॉइंट कर रहा हूँ. एंड सिमिलरली इफ आई पॉइंट माई फ्लैश लाइट हेयर तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. यू डोंट सी सिमिलर है. मेजरली फ्लैश लाइट तो तुम कभी पॉइंट करोगे नहीं इन जनरल, बट जब ट्यूब लाइट होती है, बल्ब होता है, वो थोड़े डिस्टेंट पे होते हैं, स्टिल वो तुम्हें क्लियर दिखता है. साथ साथ अगर तुम विंडो के सामने बैठ के काम कर रहे हो, तुम्हारा डेस्क सेटअप कुछ विंडो के ऑपोजिट है, तो वो ना बहुत अनोइंग सा लगता है. एंड भाई इसका जो नानो मैट डिस्प्ले है, दैट हैज़ प्रॉपर्ली सॉल्व दैट प्रॉब्लम. Along with nano matte display, it is equipped with multiple eye care features like the night hour protection, which is also TUF certified, and the eye comfort, which makes it the best choice for your eyes. बाकी लेट्स वेट. हमारा ये डीप रिसर्च में आई थिंक थोड़ा टाइम और लगेगा. मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा काम दे दिया है बोल के कि भाई रेडिट, ट्विटर ये सारे भी देख लो कि क्या फीचर्स चाहिए. एंड लेट्स सी व्हेन इट कम्स बैक टू अस. बाकी बताओ भाई सेटअप कैसा लग रहा है? अब तुम वीडियोस वगैरह देख रहे हो, दिस इज हाउ इट लुक्स. मेरे को तो मस्त लगने लग गया काफी. तो गाइस हमारा रिसर्च कंप्लीट हो गया है. रिसर्च के बाद हमारे पास हमारा एनालिसिस आ गया है. लेट्स गो थ्रू इट. मेजर रेज्यूमे रिव्यूइंग एटीएस प्लेटफॉर्म्स. भाई बहुत बड़ा एनालिसिस कर दिया है इसने. तो अब इतना बड़ा तो पढ़ने में टाइम लगेगा, बट विल डू इज विल आस्क इट टू समराइज इट. पॉपुलर जॉब स्कैन, रेज्यूमे वर्डेड, वीमॉब, स्किल सिंकर, रेस्कोर. Match resume to job description using keyword analysis and basic NLP. Limitations: most tools are surface level, rely heavily on keyword frequency and provided static feedback. Price range तुम्हारा $50 per month होता है. Crazy भाई, काफ़ी पैसे बन सकते हैं. How ATS system works: workday, parse resume into structured data, match blah blah blah, score candidates, experience, skill, approach, LLM fine tuning, advanced, low code, prompt based, user ChatGPT 4, similar prompt, no training required. तो हम ये यूज़ करेंगे. ठीक है. Users pain point, tool promote keyword stuffing without understanding context. That is very true. Inconsistent or misleading scores. ठीक है. अपॉर्चुनिटीज कूल. सो हमें बेसिक आइडिया पता चल गया है कि इस वाली जगह पे अपॉर्चुनिटी है. जो यूजर्स हैं वो खुश नहीं है. नेक्स्ट थिंग वील डू इज वील क्रिएट अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट document using this. I'll ask ChatGPT to do that. Create a product. I'll just give it a persona again. You are a product manager with 10 plus years of experience. यार तुम्हारा PRD भी बन गया है. We got our PRD. I'll also start recording my screen. I think it will help us out later. So I'll just record my screen as well. So as you can see, I'll just ask us to use Canvas so that we can then manager and add more details to the document. By then we'll also open Claude. Cool. So I use a mix of both. I use Claude and ChatGPT both to do this. So Claude is better at coding. So after this, when we are developing our cybersecurity guideline and our backend checklist, backend structure and AppFlow document, we'll use Claude. We'll give our PRD to this and then create our AppFlow doc.
Okay, cool. We have got this. I'll just download it as a markdown file. I'll give this markdown file to Claude and I'll ask it to create an app flow document. You are a product through the given PRD and help me create an app flow. Also, I want that we tell our backend when we are creating backend. So I'll use Supabase for most of the things. So I'll tell that to the backend. तो Claude also जो recent model है यार Claude का अभी जो Sonnet 4 आया है उसमें ना वो कुछ questions पूछता है. So I'll just answer these questions. Should the upload document contain prioritize the first user experience or do you want the equivalent services on both returning users as well? Both. Feature prioritization MVP, which future upload scoring feedback rewrite. Upload scoring and feedback. We can the rewrite part later. Cool. User authentication. Should I assume standard? I'll use Supabase as the base and authentication. Then payment flow, the PRD willing to pay users. Do you want to upload to include premium gates and upgrade prompts? Yes, but not for the MVP. And finally, mobile versus desktop, and onboarding depth. How comprehensive should the initial onboarding flow should be? Should be quick. So now we'll get our आपफ्लो डॉक्यूमेंट. जब तक अपना आपफ्लो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ इस मॉनिटर के बारे में. अब ना व्हेनेवर आई लाइक वर्क ऑन माई लैपटॉप एज वेल एज द मॉनिटर, एक चीज़ बहुत अनोइंग लगती थी मेरे को पहले कि आई हैव टू कैरी अ ब्रिक. ठीक है, मतलब अलग से एक और केबल लगानी पड़ती है. बट यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं है बिकॉज जो उसका USB है वो 90 वाट पावर डिलीवरी के साथ आता है. तो इफ आई जस्ट प्लग इट इन तो मेरा लैपटॉप चार्ज भी होता रहता है एंड आई गेट अ बिगर डिस्प्ले एंड इसमें इजीली चीज़ें नेविगेट करना काफ़ी आसान हो जाता है. बाकी जनरली लैपटॉप में कम पोर्ट्स होते हैं. मेरा तो मैकबुक प्रो है तो इसमें कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा पोर्ट्स हैं और लैपटॉप से. बट इस वाले मॉनिटर के अंदर ना USB हब है तो अलग से तुम्हें USB हब की ज़रूरत नहीं पड़ती. काफ़ी सारे पोर्ट्स तुम्हें मिल जाते हैं. एंड इसके साथ साथ इफ़ यू हैव अ डेस्कटॉप, तुम्हें गेम खेलना पसंद है, तुमने अपना PC बना रखा है साथ साथ, या फिर तुम्हारे पास दो लैपटॉप्स है, एक वर्क लैपटॉप है एक पर्सनल लैपटॉप है, तुम दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो एक साथ. सो यहाँ पे तुम वो कर सकते हो. KVM स्विच है, KVM स्विच को प्रेस करके सिंगल लाइक माउस एंड कीबोर्ड के साथ यू कैन कनेक्ट टू बोथ. एक बटन तुमने प्रेस किया सो तुम्हारा मॉनिटर दूसरे सेटअप पे शिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारे माउस एंड कीबोर्ड भी दूसरे सेटअप पे शिफ्ट हो जाएंगे. दैट इज़ रियली ग्रेट. एंड साथ साथ इफ़ यू हैव अ मल्टी मॉनिटर सेटअप तो डेजी चेनिंग है, तुम्हें दो अलग अलग केबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है दो मॉनिटर्स की. सो तुम उस मॉनिटर को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड बस एक पावर डिलीवरी केबल से ही तुम डायरेक्टली दोनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर पाओगे. Here we have our AppFlow document as well. We'll just go through this. Direct URL, Google Ad, user state, blah blah blah, login, ठीक है, hero section, analyze resume. Cool. So I've asked this. तो इस हिसाब से ये जितना भी हमारा AppFlow डॉक्यूमेंट है वो अपडेट कर देगा. अब जैसे मैंने बताया इसमें USB हब है तो इसमें बहुत सारे पोर्ट्स हम लोगों को मिल जाते हैं. HDMI, DP, इसके साथ साथ तुम्हें USB 3.2, USB Type B, USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 2 Type C के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं. इससे तुम डायरेक्टली पावर डिलीवरी वाला भी कनेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ साथ भी और बहुत सारे पोर्ट्स इथरनेट वगैरह पे मिल जाता है ईजिली. सो भाई हमारा AppFlow डॉक्यूमेंट भी रेडी है. इसको मैं पब्लिश नहीं करना मेरे को यार, इसको डाउनलोड कर लेते हैं MD फाइल में, मार्कडाउन फाइल में. ये भी डाउनलोड कर लिया. नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर चार्ट. नाउ हमें क्या करना है, नेक्स्ट बैकएंड वाला बनाना है, बैकएंड चेकलिस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी. जल्दी से वो बना लेते हैं. विल गिव द both the files to this and then you are a backend engineer with 10 plus years of a backend structure document. I want to build this JS and Supabase fill, and for the API I'll use
DeepSeek फॉर resume analysis. So अब ये बैकएंड स्ट्रक्चर में तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें बना देगा कि तुम्हारा बेसिकली जो स्कीमा है वो कैसा दिखना चाहिए, जो टेबल्स हैं वो कैसे दिखने चाहिए, एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे. अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है. लेट अस आंसर दिस. ऑथेंटिकेशन स्ट्रैटेजी, नो ऑथ, फेज 1 कंप्लीट, stateless session, persistent features. Phase 1 is fine. DeepSeek integration for DeepSeek capability, planning to resume parsing and extraction, job description analysis, matching scoring. I'm thinking of these three. For parsing, let's use some library. We can. I'll give that suggestion at the end. Library. ठीक है, चल. डेटा परसिस्टेंसी, हाउ डू यू वांट टू, सेशन बेस्ड, just one time to test our app functionality. Which super-based functionality would you leverage? All. And scaling consideration, traffic pattern. No need for this as of now. We'll think later. ये करना नहीं चाहिए, but we'll think later. ठीक है. Now it will create. Up in the meantime, let's check out Mobin and also Stitch with Google, and we'll create our MVP. So we got this now. What we'll do is I've created a prompt engineering persona also in ChatGPT. तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ अपने prompts को improve करने के लिए. जैसे मैं काफ़ी यूज़ कर लेता हूँ. So here what we have to do. Yes, we'll provide all the documents. Help me with the design prompt for this. Help नहीं करते, improve करते हैं. Help me improve my prompt for this to be used in Stitch by Google to build the MVP design. Create. काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूँ लिखते लिखते मैं, बट वो आगे भी हो जाता है. इसी को बनाने देते हैं, फिर उसको इम्प्रूव कर लेंगे. राइट माई प्रॉम्प्ट. सो अब दोनों डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ऐप फ्लो डॉक्यूमेंट भी दे दिया, वो भी दे दिया, तो उसको पता होगा कि क्या क्या हमें स्क्रीन्स बनानी है, कितनी स्क्रीन्स चाहिए MVP में. लेट्स गो टू दिस रेज्यूमे फिट. वील सी. हमारा ये भी लिख रहा है, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी वगैरह लिख देगा ये. भाई साहब पूरा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, एज यू कैन सी. Yes, it's ready. Our structure is ready. Great. So Mobin, I made a video on this recently. मतलब project ideas में I told you कि this is a very good app. I use it quite often. तो sites में जाएंगे हम यहाँ पे. Yes, web पे जाते हैं. We'll search. Resume related हमें कुछ मिलता है तो read.cv. Professional platform. No, this is not what we are looking for. Prompt तो ready हो गया. Let's copy this and stitch से भी जब तक बनवाना शुरू करते हैं. Try now. I'll give it my prompt. Web बनाना है हमें. Prompt दे दिया हमने. Create design. जब तक ये डिज़ाइन बना रहा है, we'll try to find हमें क्या चाहिए. Latex सर्च करके देखते हैं. Latex पे कुछ नहीं है. Mistral AI तो नहीं चाहिए हमें. This did not help much. एक काम और करते हैं. We can also use v0.dev. So let's see. पहले एक बारी let's go through this. Audience, job seekers, tailor resume, required screen, landing page, authentication, dashboard, home, creator heading, blah blah blah, new analysis results, detailed reports, history, settings, interactions. ठीक है. Mobile breakpoint. ठीक है. This looks good. We can use this directly. where a Stitch design assistant की ज़रूरत नहीं है. If we just copy it from here to here and yeah, and we open v0.dev. This is what I generally do. Oh, vo लिख दिया. v0.dev. भाई किसी ने वो भी वेबसाइट खरीदी हुई है. So इसमें क्या करेंगे? I'll just give it context and I'll ask it to build. साइन इन कर लेते हैं. ठीक है. सो इससे पूरा प्रोडक्ट ही बन जाएगा वैसे, बट हम उसको डिज़ाइन इंस्पिरेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं. जब तक वील सी स्टिच. दीज आर द स्क्रीन्स.
Would you like me to generate these screens? Yes, I would like you to generate these screens. Please do that for me. Now it will start. अपना backend ready हो गया है. Let's download this also. And last अपना कर लेते हैं हम अब create. अभी जब screens हो जाएंगे उसके बाद front end engineer वाला part भी कर लेंगे. Front end guidelines भी बना लेंगे screens देके. Last इसमें बोलते हैं cyber security expert. मैंने कल ही एक cyber security expert के लिए use किया था. So I'll just use that one only. And help me create a checklist for a resume fit as well. Make both for MVP as well as the final product. सारे सब AI को काम पे लगा दिया हमने. हमारे रेज्यूमे एनालिसिस टूल आ गया है. मेरे को स्टिच के साथ बस एक सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है, ये सारे जो बेसिकली डिज़ाइन बनाता है ना, वो बहुत सारे सिमिलर थीम्स में बनाता है. तो तुम इसको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, ये अच्छे से नहीं बता पाता है. तो मेरे को ना इसके कभी डिज़ाइन इतने पसंद आते नहीं हैं. V0 के मेरे को फिर भी कंपैरेटिवली डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे लगते हैं. बाकी कई बार इससे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ. अगर इससे भी नहीं मिलता है तो तुम ये काम कर सकते हो. तुमने भी इतने सारे ऐप्स जो देखे थे, उन सबके डिज़ाइंस को भी चोरी कर सकते हो. चोरी नहीं कर सकते तो उनसे इंस्पिरेशन लेके अपना डिज़ाइन थीम बनवा सकते हो. सो वील वेट, वील सी दिस वन. अगर अच्छा लगता है तो इसका स्क्रीनशॉट हम यूज़ करेंगे. इसके स्क्रीनशॉट्स को हम अपने एक और पर्सोना बना लेंगे जो एक फ्रंट एंड UI UX इंजीनियर होगा, एंड वील गिव इट टू देम, एंड फिर वो अपना पूरा सारा एनालिसिस कर लेगा. तो हमारी साइबर सिक्योरिटी चेकलिस्ट इज ऑल्सो रेडी. वी कैन जस्ट डाउनलोड दिस. एक मतलब अच्छी दुनिया में तुम्हें ये सब किसी से रिव्यू करवा लेना चाहिए, या फिर खुद भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना चाहिए. आई एम जस्ट टीचिंग यू जल्दी कि कैसे करते हैं, बट आई जनरली गो थ्रू देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स वंस अच्छे से, कि कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है, कहीं मेरा जो मेरे को चाहिए उसमें और जो बेसिकली LLM ने बना के दिया उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है. एंड देन आई फाइनली गिव द फाइनल कॉल, एंड उसके बाद फिर मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ. तो इसमें एज आई कैन सी page.tcx ऑथेंटिकेशन पेज, डैशबोर्ड एंड एनालिसिस पेज रेडी हो गया हमारा. तुम डायरेक्टली V0 को भी यूज़ कर सकते हो, भी काफ़ी बढ़िया बनाए देता है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द Next.js में कोड करवाना है, एंड Next.js हमारा फिर यूज़ करेगा Tailwind CSS ही. तो ये Tailwind और Next.js को यूज़ करके तुम पूरा कोड दे देता है. इस कोड को भी डाउनलोड करके तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कुछ फंक्शनैलिटी, ताकि तुम्हें मल्टीपल टाइम्स जनरेट ना करना पड़े. बट इसमें वही दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड तुम्हें बना के दे देता है. तो जहाँ पे भी डेटाबेस कनेक्शंस होने हैं, जहाँ पे भी तुम्हें बैकएंड API कॉल्स करनी है, वो यहाँ पे मॉक डेटा डाल देता है. तो मॉक डेटा को फिर कन्वर्ट करवाने में LLM से उतनी मेहनत लगती है, तो तुम फिर से नया कोड लिखवा लो. इसलिए आई डोंट यूज़ इट दैट मच. बाकी यार इस मॉनिटर की एक बढ़िया बात और लगती है मेरे को, कि एज यू कैन सी यहाँ पे ना मेरे को फिजिकल बटन, जैसे अब मैं कोड कर रहा हूँ, मेरा फिजिकल बटन यहाँ पड़ा है. अब मेरे को फिजिकल बटन के लिए बार बार मॉनिटर अपनी इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत ही नहीं है. ऑल द थिंग्स दैट आई नीड, ऑल द बटन्स दैट आई नीड या फंक्शनैलिटीज दैट आई नीड, वो मेरे को डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू मिल जाते हैं. एंड दिस ऐप इज कॉल्ड डिस्प्ले पायलट 2. तो तुम डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो इसको, BenQ की. एंड यहाँ पे मैं अपनी इसकी रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकता हूँ. तो इसकी रेजोल्यूशन एक्चुअली काफ़ी बड़ी है. The resolution is 4K. This is how it actually looks, full resolution. But इतनी resolution मेरे को नहीं चाहिए भाई, बहुत छोटा हो जाता है. So I'll take it back to the 2K display that I was using. तो मैं इसको 2K display की तरह यूज़ करता हूँ, तो ये थोड़े दोनों सिमिलर हो जाते हैं, बढ़िया रहता है. तो जो इसमें मेरे को फॉन्ट साइज़ दिख रहा है, यहाँ पर फॉन्ट साइज़ दिख रहा है, वो काफ़ी सेम है. बट हाँ, यू गेट दैट ऑप्शन. इसके साथ साथ भाई मैं मोड्स ईजिली चेंज कर सकता हूँ. पीछे जो अपनी हैलो लाइट है, मेरे को अगर हैलो लाइट को सेटिंग्स को चेंज करना है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ. कलर टेम्परेचर मेरे को चेंज करना है, यू कैन सी मैं कलर टेम्परेचर इजीली चेंज कर पाता हूँ. मेरे को लाइट मोड 270 डिग्री से 360 डिग्री करना वो कर सकता हूँ. ब्राइटनेस अपनी चेंज करनी है, ब्राइटनेस चेंज कर सकता हूँ. सारी चीज़ें ईजिली कर पाता हूँ. साथ साथ यहाँ पे तुम्हें सारे मोड्स मिल जाते हैं. नाइट आवर्स प्रोटेक्शन, लो ब्लू लाइट प्लस. तो मैं लो ब्लू लाइट प्लस मेरे को चाहिए तो मैं वो भी यहीं पे साथ साथ ऑन कर सकता हूँ. तो बटन्स, मैनुअल बटन से करने में ना बहुत मेहनत लगती है. जैसे मैं अभी यहाँ जाऊँगा, आई विल शो यू. तो मेरे को पहले एक जाके चूज़ करना पड़ेगा फिर उसमें जाके, मतलब समझ रहे हो, काफ़ी एफर्ट है. दिस इज़ प्रिटी ईजी टू यूज़. सो ये भी मेरे को काफ़ी बढ़िया चीज़ लगती है. अपना ऐप बन के दे नहीं रहा है, अगर जल्दी से दे दे. तो इसने एक्चुअली काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन बना दिया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो आई डोंट थिंक मेरे को कुछ और करने की ज़रूरत है. आई जस्ट यूज़ दिस डिज़ाइन, एंड इसी डिज़ाइन को हम यूज़ करके डायरेक्टली इससे बनवा अपने बेसिकली वी कैन आस्क द LLM कि इसको यूज़ करो, एंड इसको यूज़ करके अपना डिज़ाइन थीम जो बेसिकली फ्रंट एंड गाइडलाइंस जो बनानी है वो इसी को देख के बनाओ. ये तो काफ़ी ही बढ़िया बना दिया है यार. आई डिडंट थिंक कि इतना बढ़िया होगा. साइन इन पेज भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब चलेगा नहीं इसमें कुछ. आई जस्ट सी कि इसका आपका वो क्या है,
So this is the dashboard. This also looks pretty clean here. I'll just take a screenshot. This looks pretty good. Dashboard. This is the analyze. I don't think I need a design system. I'll just create a design document so that जो fonts हम use कर रहे हैं, सारी चीजें use कर रहे हैं वो हो. But this is pretty sleek. भाई, I am impressed. I think Google should learn from V0. Vercel basically, V0 कह रहा हूँ. This is pretty amazing. This is done. I'll just go to the main home page and उसका भी हम ले लेते हैं जल्दी से. This is how the home page looks. I've taken all the screenshots and इन screenshots को अब हम देंगे अपने LLM को. Sign in का भी दे देते हैं. Sign in can be improved. मतलब all of them were not amazing, but can be improved. But काफी बढ़िया था. Cool. So we'll just use this. We'll create a new persona now. So I'll just add photos, the home page first, then the dashboard. I don't know if it takes 8 at once. Yeah, it does. While you're gathering information, platform breakdowns is a pure web app. So we'll answer this. It's a web app. Brand assets. You can go through the screenshots and the PRD for this. We'll give the app flow document and the PRD as well to the app. So we'll just give it the app flow document and PRD to go through it. Cool. I think कुछ ना कुछ problem हो सकती है. WAC accessibility compliance हमें चाहिए. Next हमें design systems. Are you using Tailwind? We are using Tailwind. 5th, key user personas. So the guidelines prioritize students and working professionals. Cool. So we have given all the details. Let's see. I think it is taking shape. I'm pretty excited. इसके बाद बस लास्ट स्टेप बचता है हमारा कोड करना, कोड करके रीआइटरेट करना. सो आई विल शो यू. आई यूज विंडसर्फ टू कोड, टू वाइब कोड, एंड let's work on this. एक बार ये लास्ट डॉक्यूमेंट बन जाए, we'll add it to our app and then we'll start coding. Now we'll just download this. हमारा ये भी बन गया है markdown format में. अब I'll just get my code editor as well. So I was building something else. ये भी काफ़ी हद तक हो गया है, बट अभी मैं डिप्लॉय करने का ट्राई कर रहा था, थोड़ा सा फट रहा था, बट we'll figure it out. इसको बंद करते हैं. We'll open windsurf again and इसको यहीं पे हाफ स्क्रीन में कर लेते हैं. यहीं कर लेते हैं. Cool. So we'll need to create a new folder. I'll create a new folder here itself. Cascade projects, resume fit, create. So हमने बना लिया है. We'll open this. I think we'll have to rename क्योंकि कोड में थोड़ा इशू करता है. resume fit small ही करना पड़ेगा हमें. ठीक है, यही ओपन कर लिया हमने. गलत दिखा रहा है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको ओपन. Cool. So now we have downloaded all the files. What we'll do is we'll copy all these files, we'll add it to our app. Now we will ask windsurf. So यहाँ पे भी हम Claude Sonnet use कर रहे हैं internally. We'll ask just windsurf go through the documents and create a plan. We'll just add all the files, prod, resume structure, checklist, and we'll also give it some design inspiration जो हमने पहले दी थी. Desktop. Okay, we can just give it this. I think it can only take 4. So we'll give this. So हमने सारे जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स अब तक बनाए थे, जितने भी डिजाइन बनाए थे, सारे हमने कर लिए हैं, इसको दे दिए हैं, एंड लेट्स सी व्हाट इट कम्स अप विद. तो हमारा जो डिस्प्ले पायलट 2 है ना, उसमें एक चीज़ और बढ़िया है कि यहाँ पे ना तुम स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. ठीक है. सो इफ आई जस्ट ओपन दिस, सो इफ यू कैन सी ये वाला हमारा कोड मोड में आ गया है, एंड ये वाला हमारा अभी भी रीडिंग मोड में ही है. हम शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक बार और ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ. वेट अ मिनट, I'll also shoot with my phone. So if you can see, if I turn off this, the color difference.
सो कोडिंग मोड काफ़ी इजीली ऑन हो जाता है एंड तुम दो काम एक साथ कर सकते हो। दोनों पे अलग अलग, तुम्हें अगर दो अलग अलग ऐप्स के लिए भी करना है, दो अलग अलग ऐप्स के लिए कर सकते हो सेम चीज़। कि अगर तुम्हें कोडिंग मोड अपने कोडिंग वाले ऐप के लिए करना है, तुम कोई बुक पढ़ रहे हो साथ साथ, तो तुम्हें ई रीडिंग मोड अगर चाहिए फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास यहाँ पे भी हो है पेपर मोड बेसिकली, तो तुम वो भी चूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे को ई पेपर मोड यूज़ करना है तो देख, लेफ्ट साइड में मैं ई पेपर मोड यूज़ कर रहा हूँ एंड राइट साइड में मैं कोड मोड यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ प्रीटी क्रेजी। सो आई जस्ट टर्न इट ऑफ फॉर नाउ। आई यूज़ एम बुक मोड ओनली फ्रॉम फॉर द लेफ्ट साइड एंड हमारे राइट साइड पे वो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। सो ड्यूअल व्यू प्लस है बेसिकली इस फीचर का नाम एंड काफ़ी यूजफुल फीचर लगा मेरे को। अपना अभी भाई ये सारे इसको गो थ्रू कर रहा है एंड इसके साथ साथ हम एक ऐप के ऊपर भी सेट कर सकते हैं कि यार मेरे को फॉर एग्जांपल VS कोड या विंडसर्फ जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके साथ मेरे को हमारा कोड मोड यूज़ करना है। सो मैं एक ऐप के साथ उसको असाइन कर सकता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब मैं वो ऐप ओपन करूँगा तो डिस्प्ले कोड मोड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इसने अपने आप ही अब plan.md बना लिया है, तो सही किया इसने। इनिशियल फर्स्ट पेज में बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हमारा इनिशियली अपना Next.js सेटअप कर रहे होंगे। Next.js सेटअप कर लिया, सुबह बेस वगैरह सारी चीज़ें सेटअप कर ली। नेक्स्ट हम फिर उसके बाद कोर अपने बैकएंड सर्विसेज वगैरह ऐड कर रहे होंगे एंड इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होंगे। कूल, आई थिंक इट विल स्टार्ट। एंड विंडसर्फ मैंने प्रो वर्जन ले रखा है। इसमें एक चीज़ और मैंने जो करी हुई है विंडसर्फ सेटिंग्स में ना, यहाँ पे तुम एडवांस सेटिंग्स में जाके बेसिकली ऐड कर सकते हो। वेट अ मिनट, आई जस्ट फाइंड, हाँ, सो यू कैन जस्ट ऐड रूल्स। सो यहाँ पे मैंने वर्क स्पेस पे रूल्स ऐड करे हुए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारे रूल्स ऐड करे हुए हैं कि तुम्हें कुछ टूल यूज़ करना है, टूल यूज़ कर सकते हो। इसमें तुम और टूल्स वगैरह मतलब रूल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। सो वील कंटिन्यू विद आवर डेवलपमेंट। सो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई विल गो थ्रू दिस। आई विल यूज़ माई ड्यूअल डिस्प्ले व्यू मोड, ठीक है। आई जस्ट टर्न इट ऑन एंड यहाँ पे तुम चूज़ कर सकते हो बेसिकली, अगर तुम्हें लेफ्ट साइड में सिनेमा मोड रखना है नहीं रखना है। जैसे मेरे को गेम खेलना है लेफ्ट साइड में तो मैं गेम खेल लूँगा। अगर मेरे को लेफ्ट साइड में गेम नहीं खेलना, मैं किताब पढ़नी है तो मैं किताब कर दूँगा। इसको मैं डार्क मोड में ऑन कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इजीली चीज़ें पढ़ सकता हूँ, मेरी आईज पे स्ट्रेन भी नहीं होगा एंड या बाकी अपना ये साथ साथ होता रहेगा। सो भाई कल से अब तक थोड़े और चेंजेस करे हैं, थोड़ी मेहनत करी है, कुछ एरर्स आ रहे थे वो फिक्स करे हैं एंड मतलब होने वाला है ऑलमोस्ट। आई थिंक अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। देन आई विल शो यू गाइज कि कैसे सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं जब वैसे मॉनिटर को एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो आई फाउंड एन ऑप्शन टू रन टू थिंग्स पैरेलली। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक डेस्कटॉप है एंड उसके साथ मेरा अपना लैपटॉप भी है, जैसे मैं भी प्लान कर रहा था घर पे पड़ा हुआ था, जब से साहिल MBA के लिए गया तो डेस्कटॉप जो घर पे है वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो CPU ला के यहाँ पे लगा लूँ तो दो इनपुट्स एक साथ डालने के बाद भी यू कैन रन टू सिस्टम्स पैरेलली ऑन दिस मॉनिटर। एंड इसको ये PIP एंड PBP बोलते हैं। PIP इज पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं इसको ऑन करता हूँ तो आई विल शो यू इट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे टॉप कॉर्नर में एक ही पिक्चर टाइप की आ गई। अभी तो कुछ बना नहीं हुआ एंड इसको फिर मैं चेंज भी कर सकता हूँ इफ़ आई वांट टू यूजिंग आवर डिस्प्ले पायलट 2 ऐप। इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन हेयर तो मैं इसको मीडियम साइज़ का कर सकता हूँ, लार्ज साइज़ का कर सकता हूँ। तो ये तुम देखोगे लेफ्ट वाली स्क्रीन बड़ी हो रही है। इसके साथ साथ पिक्चर की जगह मैं इसको PBP भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली दो अलग अलग सिस्टम रन हो जाएंगे। तो अभी लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मेरे को HDMI पोर्ट करना है, क्या करना है। का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा हमें ठीक करना पड़ेगा, तो एस्पेक्ट रेशियो ठीक करके मस्त हो गया। एंड यहाँ पर मैं चूज़ कर सकता हूँ जैसे HDMI डिस्प्ले पोर्ट क्या करना है। सो that's also a very cool feature and the best part is all this is done using display pilot 2 app and सब तुम easily कर सकते हो। UI से कोई बटन्स की ज़रूरत नहीं है। Almost about to complete this, then I'll showcase you how the app is working. And yeah, I also like the monitor. You can definitely check out this monitor if you want. ये प्रोग्रामिंग मॉनिटर तो काफ़ी बढ़िया बनाया BenQ ने। अभी हमारे PIP मोड को बंद करते हैं क्योंकि हमें अपना कोड चेक करना है। तो एज यू कैन सी दिस इज इट। मैंने अपना पुराना वाला रेज्यूमे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आई विल जस्ट ऐड अ जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल। Go to LinkedIn, we'll find a job, random, we'll just add something, we'll see कि इसके लिए ये वर्क करता है कि नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली कुछ बेकार ही आएगा बट just to test. I'll click on analyze, it will process our documents। थोड़ा डिज़ाइन भी चेंज किया था बट काफ़ी हद तक डिज़ाइन थीम जो हमने डिसाइड करी थी वही डिज़ाइन थीम है। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, इट कैन ऑब्वियसली इम्प्रूव बट या दिस इज समथिंग जो पूरा वाइप कोड करके किया हुआ है। हैवंट रिटन एनी लाइन ऑफ कोड,
दिस कैन ऑब्वियसली improve if you know basics of coding, तो तुम इसमें थोड़े और चेंजेस कर सकते हो. मैंने बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करी थी जो LLM नहीं सॉल्व कर पा रहा था, बिकॉज वो सेम ही पैटर्न में घूमे जा रहा था. सो थोड़ा तुम्हें डीबग करना आना चाहिए कि कहाँ पे क्या इशू हो सकता है. जैसे बेसिक चीज़ें ही हैं. फॉर एग्जांपल सुपर बेस मैंने सेटअप ही नहीं किया है, ये ट्राई कर रहा है सुपर बेस पे जाके पिंग करने का, तो वो नहीं चलेगा. रेज्यूमे एनालिसिस आ गया है, वी गॉट 60% ओवरऑल मैच. ठीक है. लैक AWS एक्सपीरियंस इन JD एंड इसमें मैं फुल रिपोर्ट भी चेक कर सकता हूँ. यहाँ पे मेरे को फुल रिपोर्ट अपनी मिल जाती है. या यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट. इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. दिस इज प्रीटी ग्रेट. And yeah, you can also try out this monitor. The monitor is also really good. So thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को for more such amazing tutorials. I hope आप लोगों को वाइब कोडिंग करनी थोड़ी आ गई है. And yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में. तक के लिए